Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and थोड़ा सा मेरा गला दर्द कर रहा है इसलिए एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है बट कोई बात नहीं वील ट्राई कि सब एकदम मस्त मस्त पढ़ाई हो राइट चिल्ड्रन सो कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी मेक यू प्रिपेयर फॉर स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस फॉर 6 to 10th and Olympiad level examinations for 6 to 8th. Other than that, NTSC, NSC, JSP, RMO इन सारे एग्जाम्स की तैयारियाँ होती है चिल्ड्रन. आपको बने रहना है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर. पहली बात तो ये पूरे लेक्चर अटेंड करने हैं, सारे नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, टेस्ट सीरीज पूरी देनी है, राइट? और other than that, you're supposed to like, subscribe, like I request you to like, subscribe and share this channel to many more students so that बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सके, so that the aim of ours could be fulfilled, leaving no child behind, because we believe that it is the right of every child to have quality education. Clear children? So आज का जो लेक्चर है that is on mensuration, lecture 1 for class 7th. So इससे पहले हम लोग जो चैप्टर थे symmetry and visualizing solid shapes वहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे. उसके कुछ ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए थे. सो आज हम लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर रेक्टिलिनियर फिगर्स बेसिकली, राइट? तो उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे. दिस इज़ आवर सुपर ऑसम टीम चिल्ड्रन एंड हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको जीत दिलाने में एंड वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप लोग भी हमारे संग मेहनत करें, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी एक्सरसाइजेस के होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं वो सब टाइम से करो. और भी जो दूसरी बुक्स हैं उन्हें भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस भी ट्राई करिए. जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आस्क देम चिल्ड्रन, राइट? क्लियर ऑल योर डाउट्स. यू कैन ऑल्सो लाइक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट्स को आपके, या यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई टेलीग्राम, right? So there are many things children. This is me. I'm taking NMTC primary sub junior and 6 to 8 mathematics and lectures are available. This is our telegram channel for different classes and we actually post the links there, right? जो video lectures के links हैं वो हम लोग वहाँ post कर देते हैं. So you need not do anything, you need not search the videos. You can directly go to the telegram, join us in the like according to your class, and then you can directly go to the link, to the videos, right? You can tap to the link and directly go to the videos, which saves your time, the very valuable time. This is our website children, talkingtextbooks.in, where you can find the packages which are there. So the whole package which is for 9,000 would be reduced to 6,300 after applying my code AVLIFE. You get 30% of discount. And in the whole package, you get the study material, the test series, and other things which are mentioned here. And the second package is for 3,500, but again after applying my code, it will be for 2,450, and that is the test package, right? If any one of you feel that you have enough content, enough study material with you, and you just want to test and want to analyze what are your weak areas, what are your strong points where you do not need to give more time. So all these analysis could be done after taking this test, which contains part test and cumulative test, whose syllabus is predefined. It will be told to you, and of course these both are year-long packages, right? So I believe that these are very affordable, and you should definitely tell about it to your friends, to your relatives, didi bhaiya, and everybody like that, right children? So still, any queries, if you have any feedback that you want to give, be it positive or negative, if you want us to change something or the methodology or anything like that, or other than that, if you want to ask any doubt, then this is the number children, 9549041111. All your queries will be handled here. Clear? So let's start children. After this, we'll take the promise and then we'll start with our lecture for today. Okay?
Clear, children? Shall we start now? Okay, so children, आज का जो lecture है that is mensuration, and basically we'll be doing the perimeters and areas of rectilinear figures. That is, we'll start with the very basic triangle, rectangle, square, parallelogram. Right? तो अब इसका prerequisite यही है कि आपको basic properties की पता हो, basic concept क्या होता है, triangle क्या होता है, उसके साइड्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, हाइट क्या होती है. सेम गोज विद द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है. आई बिलीव दैट ये सब आपको बेसिक नॉलेज इसमें होनी चाहिए, तो आसानी होगी. राइट, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ होने चाहिए आपको, जो कंसेप्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पता होनी चाहिए. एंड डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्टेन फिगर्स. Right, so children, let's start. So introduction. Now introduction means what is like mensuration. मतलब introduction mensuration का ही देना है मुझे. Introduction means introduction only, right? कि mensuration is basically, it is a branch of mathematics that deals with see measurement. measurement कर रहे हैं हम perimeter का, area का, उसके वॉल्यूम का. राइट, तो ये सब चीज़ें क्या है, दैट इज नोन एज मेंसुरेशन. राइट, वो सब चीज़ें किस में आती है, मेंसुरेशन में आती है. कि आप किसी भी फिगर का, कोई भी फिगर मुझे दी हुई है ना, दीज आर 2D फिगर्स. राइट, अभी हम क्योंकि इस क्लास के अंदर वील बी स्टडिंग अबाउट 2D फिगर्स ओनली. 2D फिगर्स के ही पेरीमीटर्स और एरियाज को हम लोग पढ़ेंगे. इन द लेटर ऑन क्लासेस वील बी स्टडिंग अबाउट द 3D फिगर्स एज वेल. राइट, ऑल्दो हम एक दो 3D फिगर्स भी पढ़ेंगे, मतलब लाइक वील बी स्टडिंग अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड इन द लेटर क्लास. बट देन मेजरली इस क्लास में हम लोग 2D फिगर्स के ही पैरामीटर और एरियाज को पढ़ रहे होंगे. राइट, एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव 6th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है, बट 7th में भी हम लोग पढ़ेंगे. So these are 2D figures. So what are 2D figures? Two dimensional. Mainly they have length and breadth and no height. Right? So these are 2D figures and इसी के हम perimeters और areas को पढ़ेंगे. Right children? So that is अच्छा, volume, इनका volume नहीं होगा. Definitely 2D figures का volume नहीं होगा क्योंकि 3 dimensional है ही नहीं. Volume means कि वो कितना area, कितना region cover कर रहे हैं, कितना space occupy कर रहे हैं. अगर मैं correct word बोलूँगी, कितना space occupy कर रहे हैं हमारे इस space में, हमारे इस environment में. राइट, तो वहाँ पे हमें 3 डायमेंशन की ज़रूरत होती है जो हम 3D फिगर्स के लिए करते हैं. पर 2D फिगर्स के लिए जनरली हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करके रह जाते हैं. राइट, सो डेफिनेटली ये सब आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे चिल्ड्रन. सर्कल, एलिप्स, ट्राइंगल, हार्ट, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब कहीं ना कहीं देखा ही है. राइट, तो हम इसी के ही, इन्हीं में से कुछ फिगर्स के हम लोग जो मेजरमेंट्स हैं वो देखने वाले हैं. राइट, कि बेसिकली कि कितना एरिया कवर कर रहा है. अब वो एरिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन थोड़ी सी हम यहाँ पे पढ़ते हैं. सी, यू वांट टू राइट इट डाउन चिल्ड्रन, तो इसको एक बार लिख लो. थोड़े बहुत डायग्राम्स एग्जाम्पल की तरह थोड़े बहुत डायग्राम्स ही बना लो. बी ट्राइंगल, सर्कल, जो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने मिलते हैं, उनको, उनका डायग्राम बना लो. Next, area and perimeter of rectilinear figures. Sir, what are rectilinear figures? सबसे पहले तो a figure made up of some line segments is called a rectilinear figure, and these line segments are called as side. So rectilinear figure, what is linear? Linear means lines, right? Linear means line. तो ऐसा एक closed figure, ऐसा एक figure which is made up of lines is rectilinear figure. है ना, सिंपल है. नेम इटसेल्फ सजेस्ट लिनियर मीन्स लाइन्स. तो ऐसा कोई फिगर जिसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर फिगर. राइट, सो ये कुछ फिगर्स हैं, कुछ फिगर ड्रॉन है यहाँ पर जो रेक्टिलिनियर फिगर्स हैं. यू कैन सी इट.
बहुत सारे होते हैं, जो भी हमारे 2D फिगर्स हैं उन्हें भी हम रेक्टिलिनियर फिगर्स ही बोल रहे हैं, है ना. सो दीज आर रेक्टिलिनियर फिगर्स, प्लीज राइट इट डाउन. नेक्स्ट इज क्लोज्ड फिगर. सो चिल्ड्रन, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. क्लोज्ड फिगर क्या होता है? कोई भी हमारा रेक्टिलिनियर फिगर है जिसका स्टार्ट से लेकर फिनिश पॉइंट जो है वो सेम ही जगह आ रहा है, राइट. स्टार्ट टू फिनिश सेम जगह आ रहा है. स्टार्ट किया, फिनिश, स्टार्ट फिनिश एक ही जगह आ रहा है, मतलब दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, राइट. स्टार्ट टू फिनिश एक ही जगह पॉइंट आ रहा है, स्टार्ट और फिनिश का एक ही जगह पॉइंट आ रहा है, क्लोज्ड फिगर, राइट. नाउ दिस इज एन ओपन फिगर. चलिए यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, ये स्टार्ट करते करते फिनिश यहाँ हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये था, अलग अलग थे. सो दिस इज एन ओपन फिगर. ऐसे फिगर्स, such figures whose start and end points are same gives us a what? Just a second, children. Okay. Gives us a closed figure, right? See, a rectilinear figure having no free ends is called a closed figure. Square, rectangle, triangle, parallelogram, etc. are all closed figures, right? समझ गए. और ये हमने बचपन में ही पढ़ा है, लाइक वी हैव स्टडीड इट इन 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड की क्लोज फिगर्स क्या होते हैं, ओपन फिगर्स क्या होते हैं, है ना. नेक्स्ट, पेरीमीटर. व्हाट इज अ पेरीमीटर? कोई भी मेरा एक प्लेन फिगर है, राइट, उसके बाउंड्री का, राइट, बाउंड्री का जो टोटल मेजरमेंट है ना, दैट इज नोन एज द पेरीमीटर, राइट. The measurement of the boundary of a plane figure is known as its perimeter. मतलब कोई भी मैंने फिगर बनाया, right, so this is A, B, C, D, E, F. एक ही कर देते हैं इसको. This is looking bad, untidy, पूरा ही हट गया. So this is F and G, right. अब ये मेरा एक क्लोज फिगर है, मुझे दिख रहा है. अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, चलिए, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द लाइक ऑफ द बाउंड्री, जो पेरिफेरी है, जो बाउंड्री है, उसका मैं सम कर लूँगी. दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G. So this becomes the perimeter of this closed figure, right, of this figure in the plane. अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि पेरीमीटर निकालने का हमें काम कब आता है, राइट. बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, लाइक अ फार्मर इज डूइंग फार्मिंग, राइट. अब बट ऐसा है कि जो काउज हैं, जो बुल्स हैं, वो आकर के खेत को खराब कर देते हैं. जो खेती उन्होंने करी है, जो क्रॉप्स उन्होंने उगा रखे हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट. टू स्टॉप दैट, राइट, वो क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं अपने पूरे फार्म लैंड जो उनका होता है उसके ऊपर वायर लगा देते हैं, सो दैट दीज एनिमल्स कैन नॉट कम इनसाइड, राइट. अब कितना वायर चाहिएगा, राइट, कितना वायर चाहिएगा, तो ऑब्वियसली टोटल लेंथ. अब वायर में पूरे लैंड में तो नहीं लगाने वाली, ऑब्वियस सी बात है, राइट. लाइक many of you must be having gardens, right, at back side of your house or in front of your house. So you do the fencing there, right, very colorful fencing we do of wooden planks, right. तो इस तरह की चीज़ें हम कब करते हैं चिल्ड्रन, तो obviously we won't be doing those, we won't be putting those wooden planks on the inside the garden, right. वो obviously हम बाउंड्री पे लगाएंगे, उसको फेंस करेंगे, है ना, ताकि कोई भी लाइक कोई भी इंट्रूडर कैन नॉट कम इनसाइड और डॉग्स और वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट कम इनसाइड, राइट. तो इन जगहों पर हमें इन बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई वी कैलकुलेट द पेरीमीटर, क्योंकि टोटल कितना लेंथ का मुझे वायर चाहिए या कितना मुझे वुडन प्लैंक चाहिएगा,
वहाँ पे वो बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, राइट। तो ऐसी जगहों पर हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है ना। नेक्स्ट इज एरिया. सो व्हाट इज एरिया नाउ? नाउ द रीजन, जो मैंने फार्मिंग लैंड बताया या मैंने कोई भी एक रीजन बताया, बीट गार्डन और एनीथिंग, बीट कंस्ट्रक्शन साइट या कुछ भी, राइट. सो द रीजन एनक्लोज्ड विद इन दैट बाउंड्री, जो बाउंड्री थी ना उसके अंदर का जो रीजन है, एनक्लोज्ड विद इन, इनसाइड, राइट. इनसाइड, विद इन और इनसाइड दोनों एक ही बात है, राइट. सो इनसाइड जो रीजन एनक्लोज्ड है, दैट कंप्राइजेस ऑफ द एरिया. दैट टेल्स अस, दैट मेजरमेंट इज द एरिया. ठीक है, जो रीजन है अंदर उसका जो मेजरमेंट है, दैट इज नोन एज द एरिया. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ प्लेन, दोनों ही चीजें लिख रखी है मतलब. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ प्लेन रीजन एनक्लोज्ड बाय सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. मतलब अगर मैंने ये रीजन बनाया चिल्ड्रन, अगर मैंने ये रीजन बना रखा है, इसके अंदर का ये जो रीजन है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर का, इस क्लोज प्लेन फिगर के अंदर का जो पार्ट है, दैट इज नोन एज द एरिया. उसको मैं क्या बोलूंगी? एरिया बोलूंगी. मतलब इसका ये जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी नोन एज द एरिया. ठीक है, प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन. Let's move further. Okay, now let's talk about the triangles, different types of triangles. A triangle is a closed polygon, right, which has 3 sides, 3 vertices, 3 angles. They are of many types based on the angles, based on the sides, right. ये सब information हमको पता है. अब इसका पेरीमीटर और इसका एरिया हमको निकालना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है. तो डिफरेंट उसके एरियाज भी होंगे, मतलब बहुत डिफरेंट एरियाज नहीं होते हैं. बेसिकली वो एक से ही जनरेटेड होता है दूसरा, बट देन वी जस्ट से इट, ताकि डायरेक्टली अगर आ जाए तो हम उसको यूज कर पाए, है ना. बाकी जनरल जो है वो हाफ बेस इनटू हाइट ही यूज होता है. ठीक, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन. So starting with a scalene triangle children. अब scalene triangle है अगर, so if you can see it here, this is not proper, let me draw it. So this is A, this is B, this is C, okay. So I hope it is clear. So स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है चिल्ड्रन? जिसका लेंथ ब्रेड बोल रही हूँ मैं, जिसके तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है. दैट इज अ स्केलिंग ट्रायंगल, राइट. So if I talk about the perimeter of this triangle, this is a scalene triangle. So children, स्केलिंग ट्रायंगल में A, B, C, मतलब उसके तीनों साइड्स क्या हैं? अलग अलग हैं. तो पेरीमीटर क्या हुआ? तीनों साइड्स के मेजरमेंट का सम. ठीक है, तीनों साइड्स के मेजरमेंट का सम. एरिया कितना हुआ? हाफ. दिस इज द बेस चिल्ड्रन, दिस इज द बेस. या अगर मैं और प्रॉपर कहना चाहूँ तो बेस क्या होता है चिल्ड्रन? जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे हाइट दी हुई है, जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे हाइट दी हुई है चिल्ड्रन, जिसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दैट इज नोन एज द बेस. उसको बेस कहा जाता है. जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इस जो नीचे की साइड पे है, जो साइड बनी हुई है, वही हमेशा बेस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं. अगर मेरा ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, सी, ठीक है, और परपेंडिकुलर इज ड्रॉन लाइक दिस, है ना. इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन है, मतलब दिस इज A, दिस इज B, C एंड दिस इज P.
ठीक है, सो माई परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द साइड AC, राइट। अब यहाँ पे चिल्ड्रन बेस क्या हुआ, यहाँ पे बेस वही होगा जिसके करस्पॉन्डिंग है परपेंडिकुलर बना हुआ है, राइट। तो अब मेरा बेस क्या है चिल्ड्रन, दिस इज माई बेस, दिस इज माई बेस एंड BP इज माई हाइट। BP ब्लड प्रेशर इज माई हाइट, नॉट माई, यहाँ पे ट्राइंगल में BP, ठीक है। सो हाइट क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपकी जैसे हाइट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी जनरल घर पे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आवर पेरेंट्स और आवर एल्डर ब्रदर सिस्टर व्हाट डू दे मेक अस डू, कि वॉल के इस तरह से एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ, है ना। तो दे लाइक दे कैन मेजर द हाइट ऑफ आर्स, या कहीं पर भी स्केल भी अगर है तो आप क्या करोगे, बस उसके स्ट्रेट खड़े हो जाओगे तो आपको आपका हाइट पता लग जाएगा उस स्केल के अकॉर्डिंग, है ना। अब अगर आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, राइट, तो आपका सही हाइट आएगा क्या, नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका ये मतलब है कि यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट, राइट। आपका हाइट नापने के लिए यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल अगर किसी लाइन पर बन रहा है तो व्हाट इज दैट, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री है वो, है ना। अगर स्ट्रेट कोई अगर लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है अगर किसी स्लीपिंग लाइन के ऊपर, ये मैंने अभी अभी पढ़ा चिल्ड्रन, ऑल्दो दिस इज वेरी वेरी बेसिक, दिस इज द स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज द स्टैंडिंग लाइन। सो अगर आप कोई स्टैंडिंग लाइन किसी स्लीपिंग लाइन पे बना रहे हो तो दैट इज 90 डिग्रीज, राइट। एंगल कौन सा बनाएगी वो, 90 डिग्रीज बनाएगी, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ, राइट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, तो मैं ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, और आपका हाइट भी उसी तरह से नापा जाता है। अगर मैं आड़े टेढ़े कैसे, तो भी किसी एंगल पे ऐसे झुक के अगर मैं खड़ी हूँ, मान लो, ठीक है, वॉल को अगर मैं ऐसे करके खड़ी हूँ, तो क्या मेरा प्रॉपर हाइट आएगा, नहीं आएगा, राइट। आई हैव टू स्टैंड लाइक दिस टू हैव द करेक्ट हाइट, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन, अब ये अगर इस लाइन पे अगर मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये हाइट बता रहा है जो परपेंडिकुलर है, एंड दिस शोज द बेस। सेम इज द केस हियर एज वेल, इफ दिस इज माय परपेंडिकुलर तो दिस बिकम्स माय हाइट, ये मेरा हाइट हो जाएगा, एंड जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर है दैट बिकम्स माय बेस। अगर मेरा परपेंडिकुलर इस साइड है तो ये मेरा बेस हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया, हाफ, दिस इज बेस एंड दिस इज माय हाइट, ठीक, ये मेरा हाइट हो जाएगा, दैट इज हाफ BH, सेम थिंग, B is base, H is height, okay. Then we talk about isosceles triangle. Let me draw an isosceles triangle. All right, this is my isosceles triangle. If you can see, this is P, this is Q, this is R, and this is say A, ठीक। अब एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस डेफिनेटली क्या है, ये है चिल्ड्रन। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं हाइट नहीं बना रही, ओके, जस्ट इमेजिन दैट आई एम नॉट ड्रॉइंग एनी हाइट हियर, राइट। नाउ आई नो दैट दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो अब उसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, दीज टू आर द इक्वल साइड्स। अब इसमें अंडरस्टूड है कि जो थर्ड साइड है दैट इज द बेस साइड कौन सी है चिल्ड्रन, ये वाली जो थर्ड साइड है वो क्या है, बेस साइड है। आए बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। दीज आर द इक्वल साइड्स, सो ऑब्वियसली वो इक्वल साइड ही कहलाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बेस साइड कौन सी होगी, जो थर्ड साइड है, राइट। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स, अब पेरीमीटर है सेम, पेरीमीटर वही है, दो इक्वल साइड्स है प्लस द थर्ड साइड,
राइट वो सेम है, बाउंड्री का जो मेजरमेंट करना है सम करके पेरीमीटर इज सेम। एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें भी अगर मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट का मेजरमेंट अगर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी सेम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट तो उसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, ये तो क्या है इक्वल साइड्स है, मतलब अगर मुझे बेस नहीं दिया हुआ, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अगर नहीं दिया हुआ है तब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, चलो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट इज एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब नहीं दिया है तो अंडर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर, दिस एंड दिस इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस स्क्वायर, 1/4 ऑफ बेस स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज कॉपी इट। अगर इसमें परपेंडिकुलर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मैं इसके अंदर भी परपेंडिकुलर मतलब जो हाइट है वो हाइट का मेजरमेंट और बेस साइड दी हुई है, तब तो मैं सेम फॉर्मूला लगा सकती हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर नहीं दिया हुआ है तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं एरिया। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वी ऑल वेरी वेल नो, जिसमें एक एंगल क्या होता है, डेफिनेटली इट हैज टू बी 90 डिग्रीज, P, Q and R. So this is an right angle triangle. This is a right angle triangle जहाँ पे एक एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है, राइट ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री है, इसका मतलब चिल्ड्रन ये क्या हो गया, दिस बिकम्स द हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब दिस बिकम्स द हाइट। ये क्या हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया मेरा हाइट। अब ये अगर करस्पॉन्डिंग, अब ये परपेंडिकुलर है किसके, क्यू आर के, राइट ये किस पे परपेंडिकुलर, किस पे बेस कर रहा है, क्यू आर पे, तो क्यू आर डेफिनेटली मेरा क्या बन गया, बेस, एज सिंपल एज दैट, राइट ये क्या बन गया मेरा, क्यू आर क्या बन गया मेरा, बेस, सिंपल, राइट। सो अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब चिल्ड्रन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, देखो ये हाइट और ये बेस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस कुड ऑल्सो बी हाइट एंड बेस, क्योंकि दिस क्यू आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, राइट क्यू आर भी क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, राइट। सो दिस कुड ऑल्सो बी हाइट, दिस एंड देन दिस कुड बी द बेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका फॉर्मूला सिंपल वही लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, मुझे यहाँ पे बेस भी पता है हाइट भी पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, सिंपल। और पेरीमीटर क्या है, बेस प्लस what is this, this is D, that is the hypotenuse, hypotenuse को उन्होंने D से कर रखा है, ठीक। सो प्लीज कॉपी इट, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन इस पे बेस्ड। ओके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलराइट। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री तो है ही है, 90 डिग्री तो होगा ही सही, पर कैच क्या है इसके अंदर, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा ही रहेगा, बट ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी और 90 डिग्री रहेगा, ये इसका बेसिक बात है जो हमें बचपने से पता है। फॉर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेट ए बी द इक्वल साइड्स, तो अब वो बोल रहा है कि अगर
इन साइड्स का मेजरमेंट इक्वल है ए के, राइट अगर इनका मेजरमेंट इक्वल है ए के तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू, चिल्ड्रन हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री है, क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या है इसका भी मीनिंग क्या है, लेट्स नॉट गेट इनटू द पाइथागोरस थ्योरम, आई गेस हमने अभी पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू ए, पेरीमीटर कितना होगा a प्लस रूट टू ए। मैं क्यों निकाल रही हूँ हाइपोटेन्यूज क्यों निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पेरीमीटर निकालना है। अगर इसका मेजरमेंट दिया हुआ है तब तो वेल एंड गुड, तीनों को ऐड कर दो, नहीं दिया हुआ है तो मैं ये कैसे निकालूंगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, मतलब अंडर रूट अगर निकाल रहे हैं तो फिर डायरेक्टली ये निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों सेम है, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, हाफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी वेरी इजी। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तीनों एंगल्स भी इक्वल है। लेट अस से दिस इज a, अगर ये a है, ये भी अगर a है, ये भी अगर a है तो क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होगा 3 इंटू साइड मतलब 3a, या साइड का जो भी मेजरमेंट है वो। प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन। नेक्स्ट चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ओके, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है हमें एरिया। स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ ट्राइंगल whose base and altitude, so altitude is another name for height children, altitude is another name for height or perpendicular are as under। अब बेस और एल्टीट्यूड दे रखा है, हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। बेस एंड हाइट इज गिवन टू अस, लेट्स कैलकुलेट। सो बेस इज 18 सेंटीमीटर्स and altitude is 3.5, so area is equals to half base, let me write the formula, पूरा फॉर्मूला ही लिख देती हूँ मैं एक बार, तो फर्स्ट टाइम तो आई राइट इट, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है, एनीथिंग। अब कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज 18, 3.5, this becomes 2 9s are 18, 9 5s are 45, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया चिल्ड्रन, एरिया हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, बेस कितना है, डीएम 8 डीएम डेसीमीटर में दे रखा है ना, क्या दे रखा है, डेसीमीटर में दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर दूंगी। राइट तो ये कितना हो जाएगा, एरिया, चल पहले बेस को चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बेस इज 8 डीएम, डेसीमीटर्स है, सेंटीमीटर में अगर करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगी, तो ये 80
सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो एरिया कितना हो गया, हाफ 80 इंटू 15 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, find the altitude of a triangle whose area is 42 centimeter square and base is 12 centimeter. Okay, so area होता है half base into height. So area is already given to me as 42, half base is given as 12 into altitude it is asking. या इसको मैं h लिख दूँ, है ना, डायरेक्टली h लिख देती हूँ, it will be easy for us. So this becomes 6. h कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 7 सेंटीमीटर। h कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट करें, find the area of a right angle triangle whose sides containing the right angle are of lengths 20.8 meter and 14.7 meters. Find the area of a right angle triangle whose sides containing the right angle. वो बोल रहा है कि वो sides जहाँ पे 90 डिग्री कंटेन हो रहा है वो क्या है, 20.8 and 14.7. राइट, सिंपल, हाफ 20.8 इंटू 14.7 कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 14.7. सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 10.4, 7 4 28, 4 4 16 and 18, 4 and 5, then 7, 4 and 1. This comes out to be 8, 8, 12, 5 and 1 and 152.88 meter square. Right? Right children? छाप लो इसको, छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें चिल्ड्रन। The area of a triangle whose base and the corresponding altitude are 15 centimeter and 7 centimeter. ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस और उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, समझ रहे, बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, आर 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, whose one of the sides containing the right angle is 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है चिल्ड्रन कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका बेस वो क्या बोल रहा है, whose base and the corresponding altitude, ठीक है, बेस है 15 सेंटीमीटर्स
और उसका हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर्स। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है चिल्ड्रन? एक राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल है, राइट। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या है? इक्वल है, इन दोनों का एरिया। ठीक, अब उसमें वो क्या बोल रहा है? ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 10.5 सेंटीमीटर्स। 10.5 सेंटीमीटर्स दे रखा है। दूसरा हमें पता करना है, दूसरा साइड हमें क्या करना है? पता करना है ना। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। सिंपल, इसको बोल देते हैं ट्राइंगल 1, इसको बोल देते हैं ट्राइंगल 2। तो अब मैं क्या बोलूँगी? एरिया ट्राइंगल 1 विल बी हाफ बेस कितना है 15 इंटू हाइट, राइट, कितना हो गया 105/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये मेरा एरिया निकल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन एरिया ट्राइंगल 1 इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल 2, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर है सेकेंड ट्राइंगल के एरिया के। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन कि एरिया, अब इसको तो अपन इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक। अब एरिया ट्राइंगल 2 कितना है? हाफ बेस मान लो है 10.5, हाइट हमें पता नहीं, ठीक। अब अपन क्या करेंगे? वील पुट दिस 102, मतलब एरिया ट्राइंगल 1 जो आया है उसको मैं कहाँ पुट कर दूंगी? इस एरिया ट्राइंगल 2 के अंदर, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो हैं, राइट, ये दोनों सेम ही तो हैं। तो लिख देते हैं अपन 105/2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 105/10 इंटू एच, राइट। 10.5 था, उसको 105/10 लिख दिया मैंने। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो गई, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब हाइट कितनी आ गई चिल्ड्रन मेरे पास? हाइट कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हाइट कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन फिगर ABCD, जस्ट अ सेकंड चलो मैं टाइम देख लूं। Okay. In figure, ABCD is a rectangle of length AB 40 centimeter and breadth BC equals to 25 centimeter. If PQRS be the midpoints of the side, find the area of the shaded region. अच्छा, be the midpoints. PQRS be the midpoints. Find the area of the shaded region. Shaded तो दोनों ही हैं. Are we supposed to find the area of this? Okay. ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा सा अपन वो लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन को अपन बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, पर चलो बाद में करते हैं। व्हेन वील बी डूइंग, जब हम चलो ठीक है करते हैं, अभी करते हैं, है ना। देखो अब आई नो दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मुझे पता है कि चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना, ठीक है। ये हमें पता लग गया।
शेडेड रीजन मतलब बेसिकली कौन से रीजन की बात कर रहा है ये मैं बताती हूँ आपको. इट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द एरिया फॉर दिस. इस एरिया के लिए ये फाइंड करने बोल रहा है अपने को. समझ गए? इस एरिया के लिए ये फाइंड करने के लिए मुझे बोल रहा है. ठीक है, शेडेड रीजन. अब समझ गए आप लोग किसका करना है. मतलब बेसिकली इसका नहीं करना है मुझे, अंदर वाले का, बाहर वाले का करना है ना. अब वो बोल रहा है इट इज टेलिंग अस दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो सबसे पहली बात तो ये कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो इट इज सेइंग ए बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. ए बी क्या है 40 सेंट. थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ चिल्ड्रन. आई होप इट विल बी विजिबल. हाँ ठीक है. सो मैं क्या बोल रही हूँ कि ए बी, बाबा रे, सो आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन कि ए बी जो है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है, ए बी मुझे कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है. एंड बी सी मुझे कितना दिया हुआ है 25. तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा. ऑब्वियस सी बात है, राइट. और अगर ये 25 सेंटीमीटर है, ये अगर 25 सेंटीमीटर्स है तो चिल्ड्रन लेट मी ट्राई. राइट, ये 25 सेंटीमीटर्स है तो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो बी 25 सेंटीमीटर्स. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अब वो क्या बोल रहा है, इफ पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स. अब ये जो है, ये जो आगे मैं गाऊंगी नहीं, दिस पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी रिस्पेक्टिवली. अब ये मिड पॉइंट्स हैं तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर. ये हो गया 20 सेंटीमीटर. ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर. ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर. राइट, ये हो गया कितना 25/2 सेंटीमीटर्स. तो ये भी हो गया 25/2 सेंटीमीटर्स. भाई मिड पॉइंट है तो इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है. मिड पॉइंट होने का मतलब यही है ना कि भाई ये पूरा साइड है, इसका ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको. सिंपल सी बात है. तो इसका मतलब सेम चीज़ यहाँ पर भी है. दिस इज ऑल्सो 25/2 एंड दिस इज ऑल्सो 25/2. ये वाला जो साइड है, ठीक है, आ गया समझ. अब वो बोल रहा है शेडेड रीजन. तो मैंने बता दिया कि भाई शेडेड रीजन क्या है. ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. ये तो हम समझ गए. ठीक है, ये बात हम समझ गए क्या कि भाई वो ये और ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, जो कि क्या है बाय डिफॉल्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. बाय डिफॉल्ट क्या मतलब, उसने डायग्राम दिया है तो उस अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. और अब ये देखो इसका, अब ठीक है, अपने को बेस और हाइट से मतलब है. जो 90 डिग्री, जो साइड्स विच करस्पॉन्ड्स द 90 डिग्री एंगल या विच होल्ड्स द 90 डिग्री एंगल, हमें उससे मतलब है क्योंकि उनमें से एक ही बेस और हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल में. तो अब यहाँ पे देखो 20, इसके मेजरमेंट क्या है 20, इसका है 25/2, इसका है 25/2, 20, 20, 25/2, 25/2, 20. मतलब चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है. चारों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है, राइट. तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक ट्रायंगल का निकाल लूँ, एक ट्रायंगल का निकाल लेती हूँ और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूँ.
भाई 4 बार ऐड ही तो करना है, सेम एरिया को 4 बार ऐड ही तो करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 4 कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा मेरा। सही बात है। तो अब एरिया ट्रायंगल एक किसी उसका निकाल लेते हैं अपन, लेटर से APS का, ठीक है, APS, ठीक है। APS में क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि हाफ बेस कितना है 20, हाइट कितना है 25/2, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हाँ, तो बस इसका एरिया निकालना है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, दिस इज गोइंग टू बी 5, 4 5 are 25, 25 and 125. So this becomes 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा 4 इंटू 125, 20, 10, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया चिल्ड्रन। इतना सारा वो करने के बाद क्या हमारा आंसर आ चुका है, तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लो ना, ठीक है। प्लीज़ कॉपी इट चिल्ड्रन, प्लीज़ कॉपी इट डाउन, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो चिल्ड्रन दिस इज इट फॉर टुडे। सी एक क्वेश्चन और है, वो हम बाद में कर लेंगे नंदलेस, और फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम का अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.